Good morning, students. So, first of all, I would like to welcome you all in this new semester. From this video lecture, we are going to complete the syllabus of OOPS using C++, which is, I think it is in BCA and BCS second year. So, we will try to complete up all the syllabus within 10 to 12 days. Actually, it has to be completed in holidays, but due to some personal issues, it is not possible for me to go live on YouTube. So, I have decided to go with our traditional way, that is uh, posting some videos which are related with your syllabus. So, OOPS using C++. Up till now, you have seen the concept of C programming. What is C programming? Programming language means what? It is nothing but medium of communication between user and computer. Only language means medium of communication between uh, uh, two persons. Whereas what is programming language? Programming language is nothing but medium of communication between user and computer system. I have already explained the fundamental things. That is what is language, what are the different types of languages, which language is understood by computer, which language is understood by user, and all these things in the playlist of C programming language. You can refer the first video of C programming from that playlist. Now, in this particular C++, OOPS using C++, basically C is a structured programming language, whereas C++ is object oriented. So, what is difference between structure and object oriented, that we have to see in this particular video lecture. Now, what are the basic concepts of OOPS? OOPS means what? Object oriented programming. ओरिएंटेड मीन्स व्हाट? जो उसके ऊपर डिपेंड है. बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू राइट C++ प्रोग्राम विदाउट यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो. देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? सी, द हार्ट ऑफ C++ programming language is class and object. Although it is possible to write the program in C++ without using class and object also. But whether that particular program is called as object oriented C++ program, definitely no. It is a bare structured program like C programming language, where only instructions like input output instruction or looping statements or conditional statements are used in your program, but class and object is not used. Is it possible to write such programs? Yes, definitely it is possible to write the programs in C++ without using class and object. So, what is OOP? OOP is a programming paradigm that focuses on organizing code around objects and their interactions. Class and object, these two are the basic things of OOPS. Now, this paradigm revolves around the object only. Now, what is object? हम आगे देखने ही वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है. तो ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट है क्लास की. दैट क्लास डिफाइंस समथिंग and objects are used to access the members of a class. Turbo C++ is a popular IDE that supports OOP features. There are so many versions of C++. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ओरिएंटेड मीन्स व्हाट? जो ऑब्जेक्ट के आजू बाजू घूमती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. C++ के बाद जनरली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, जैसे कि C++ के बाद जावा आ गए, फिर पाइथन आ गए. ऑल दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस.
and there are so many compilers which are present around the globe of C++, but smallest simple compiler is Turbo C++ compiler. Otherwise, there is a Borland C++ compiler, there is a what you can say Quick C++ compiler. But throughout these video series, we are going to use only Turbo C++ compiler, and which is freely available. Nowadays, for Windows 11 or Windows 10 computer systems or laptop, just you have to give the query in Google that Turbo C++ compiler for Windows 10, Turbo C++ compiler for Windows 11. It will come with DOS box. When you install that particular software, it will execute the DOS box, and through that DOS box, your C++ editor will be displayed onto screen. Integrated development environment. Then in OOP, classes defines the blueprint of creating objects. Now what is class? जैसे कि हमने C में पढ़ा था, देखो structures, unions. What is structure? Structure is nothing but to overcome the disadvantage of array, structures are created. What is advantage of array? That it is possible to bind values of same data types together. And what is disadvantage of array? It is used to bind variables of only same data types together. तो अलग अलग डेटा टाइप के मैं एक साथ बांध नहीं सकता था एरे में. एरे में हम क्या करते थे कि ओनली सेम टाइप डेटा कैन बी बंच्ड टुगेदर इन एरे. उसके ऊपर क्या आ गया? स्ट्रक्चर्स, so that it is possible to bind variables of different data types together. स्ट्रक्चर में हमने देखा है ये ऑलरेडी. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज है पूरी 20-22 लेक्चर की, आप वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट है उसकी अलग से. सो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर तक हम आके रुके थे. उसके बाद फाइल हैंडलिंग था, लेकिन वो फाइल हैंडलिंग टोटली डिफरेंट है. स्ट्रक्चर के आगे अब हमें सीखना है C++, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. कंसेप्ट स्ट्रक्चर के जैसे ही है, खाली ध्यान देने की जरूरत है कि हाउ टू प्रोसेस. यहाँ पे भी क्लास को वही कहते हैं, इट इज यूज टू बाइंड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड फंक्शंस टुगेदर. ये एक एडिशन हो गया उसमें कि फंक्शन ऐड हो गया. अदरवाइज डेफिनेशन इज सेम एज स्ट्रक्चर. सो इट इज यूज टू क्रिएट ब्लूप्रिंट. मीन्स जब मैं एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ वेयर देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स एंड सो मेनी फंक्शंस, to process these variables and functions, one thing is created, that entity is called as object, and through that object it is possible to process members of a class. Classes contains members and member functions. Objects are instance of class and represent specific entities in the program. It is possible to define more than one objects of a same class at a time in your program. That we have to see in detail in next some chapters. Next thing is, what are the basic concepts? तो अब तक हमने 2-3 पढ़े. That we can use. OOP is object oriented. Turbo C++ is a popular IDE. Classes defines the blueprint. Objects are instance of a class. In same way, encapsulation is one thing. Encapsulation means what? Capsulate the things. आपने अगर फार्मेसी की कैप्सूल देखी है, कैप्सूल जो 2 साइड से बंधी हुई रहती है, वो कैप्सूल अगर देखी है तो आपको ध्यान में आएगा कि encapsulate means what? कि आप बहुत सारा डेटा एक जगह पे जमा कर रहे हैं. So encapsulation is the principle of bundling data and methods together with an object. जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चर और क्लास के इसमें क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर में हम खाली वेरिएबल्स यूज कर सकते थे. इट इज पॉसिबल टू यूज पॉइंटर टू फंक्शन, बट फंक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर. बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन क्लास, फंक्शन में बी पार्ट ऑफ क्लास. सो एनकैप्सुलेट करना मीन्स व्हाट? बंडल कर सकते हो एक जगह पे. Then there is a concept of inheritance. If there are more than one classes in my program, then definitely there are different objects.
but C++ provides the facility that you can process members of one class by using object of another class. So enables the creation of new classes based on existing classes. अब बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लासेस मीन्स व्हाट, समझो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे एकेडमिक्स के कुछ मार्क्स है और स्पोर्ट्स के कुछ पॉइंट्स है, लेकिन वो डिपार्टमेंट अलग है, तो मैं एकेडमिक के मार्क लेता हूँ, बाद में खाली स्पोर्ट्स के मार्क लेता हूँ और दोनों डिपार्टमेंट को मिलके प्रोसेस करता हूँ बाय यूजिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी कंसेप्ट जो हम बोलते हैं ना, जनरली पिताजी को अगर डायबिटीज है तो कुछ बच्चों को डायबिटीज हो सकता है, सभी को हो सकता है, किसी एक दो को हो सकता है, किसी को हो भी नहीं सकता है। सो इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, प्रोसेसिंग मेंबर्स ऑफ वन क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। सब क्लासेस विच आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्लास इन इनहेरिटेंस, एक बेस क्लास होता है और उसके नीचे बाकी सब डिराइव्ड क्लासेस होते हैं। सिक्स्थ बेसिक कंसेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। In C++, it is possible to declare two functions with same name, either by passing different number of parameters to these functions, or if number of parameters are same, then data type of at least one parameter should be different. अगर दो फंक्शन सेम नेम के मैं लेता हूं तो C++ अलाउ करेगा, और उसमें भी क्या है, खाली एक कंडीशन रखी है कि फंक्शन को जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो, तो एक फंक्शन को अगर एक पैरामीटर पास करते हो तो दूसरे फंक्शन को दो करो, और अगर दोनों फंक्शन को दो पैरामीटर है तो ये दो पैरामीटर में से एक फंक्शन में एटलीस्ट वन पैरामीटर की डेटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। सो पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड अनदर वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन योर कंपाइलर नोज विच फंक्शन और विच ऑपरेटर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो रन टाइम डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीजें आती है, वन इज फंक्शन ओवरलोडिंग, अनदर वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Whereas in runtime polymorphism there is a concept of virtual function. So polymorphism promotes the code flexibility and extensibility. कैसे, तो दो फंक्शन सेम नेम के बना, एक फंक्शन एडिशन करेगा, दूसरा सब्ट्रैक्शन करेगा, नेम सेम रहेगा, और कौन सा एग्जीक्यूट करना है वो कंपाइलर को मालूम होगा, डिपेंडिंग ऑन डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स। So these are the basic concepts of object-oriented programming. Now, what is paradigm of object-oriented programming? It is a programming paradigm that organizes software design around objects. फिर वही बात आ गई कि it revolves around the object. Objects are instance of class and encapsulate data and behavior together. Behavior means what? Suppose there are two variables in my class, and one function is defined that which decides that how these variables behaves. दो वेरिएबल की एडिशन प्रिंट करनी है, दो वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है, तो ये दो वेरिएबल मेरे क्लास में कैसे बिहेव करेंगे ये डिसाइड करने का काम अगर कोई करेगा तो वो क्लास के फंक्शन करेंगे और ऑब्जेक्ट उनको प्रोसेस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर टुगेदर। डेटा भी लेगा, बिहेवियर मीन्स फंक्शन भी लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रमोट्स मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सभी चीजें आपके UPS के पैराडिगम में आएगी। नेक्स्ट थिंग इज, while learning C++ or while learning any object oriented programming, what you have to learn, that first thing is class and object, second thing is encapsulation, third thing is inheritance, and fourth thing is polymorphism. ये चार चीजें आपको सीखनी ही सीखनी है। अब इनहेरिटेंस के बारे में भी मैंने बताया आपको। इनकैप्सुलेशन मीन्स इनकैप्सुलेट करना सभी को,
Inheritance means processing members of one class by using object of another. Polymorphism means using same thing for different purpose. जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो फंक्शन सेम नेम के यूज कर सकते हो लेकिन अलग अलग प्रोसेसिंग के लिए. Now what are the advantages? Modularity. Sometimes what will happen, students are written the programs, very lengthy programs by using a single main function. It might be possible that you can divide these programs into modules and call the modules accordingly or as per your need into your program. आपकी जैसी नीड रहेगी वैसा अगर आप उनको कॉल करोगे तो एक तो स्पेस भी कम लगेगा. सी व्हाट विल हैपन when I write a program by using a single main function in C, then there might be possibility that some procedures are repetitively coming. After suppose 50 lines one procedure is there, again after 40 lines same procedure is there. So instead of writing the entire code for this procedure number of times, it is possible to bind all these things together by using a function and then call that function as per your need on that particular location. So once you write the function you can use it more than once. Modules can be developed independently and easily integrated into लार्जर सिस्टम्स. बहुत ईजी होता है कि अगर आपके प्रोग्राम को आप स्प्लिट करोगे. नेक्स्ट थिंग इज रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मीन्स व्हाट? सो इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन प्रमोट कोड रीयूज, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट. एक क्लास ले रहा हूँ उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, दूसरा क्लास फिर तैयार कर रहा हूँ उसको प्रोसेस कर रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, दोनों में अगर कुछ कॉमन चीज़ें हैं तो एक क्लास में ले लो, दूसरे क्लास में बाकी फंक्शन लिख के उनको प्रोसेस करो. दैट माइट बी पॉसिबल. रीयूजेबिलिटी मीन्स यू कैन रीयूज द थिंग्स. नेक्स्ट थिंग इज एक्सटेंसिबिलिटी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज फॉर इजी एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स और मॉडिफिकेशंस टू एग्जिस्टिंग कोड. न्यू क्लासेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस. अगर मुझे लगता है कि मैंने एक क्लास तैयार किया है और बाद में मुझे दूसरा कुछ मॉड्यूल लिखना है, बट दैट मॉड्यूल में यूज सम पार्ट्स और सम पोर्शंस ऑफ माय currently created class, then it is possible to inherit the classes and use the things. ऊपर के क्लास की चीज़ें यूज करो, which is called as extensibility. So new classes can be derived from existing classes. Sorry. Now, what are the common object-oriented programming languages? There are so many languages, but for the example, C++, Java, Python, C#, Ruby, and there are many other popular programming languages follows the OOPS paradigm. So many languages are there which follows the object-oriented paradigm. Nowadays, Python is very, what you can say, popular programming language nowadays after lockdown, because huge library is present to process the statistical data, to draw the graphs. Everything is present in Python. But now, nowadays, I have heard about Mojo programming language. That might overtake, I don't know, but that might overtake Python also. Each language may have its own syntax and specific features, but they share the fundamental concepts of OOPS. होता क्या है, देखो हमने C पढ़ी है ऑलरेडी और अब हम C++ पढ़ रहे हैं. C में डेटा टाइप है, C++ में डेटा टाइप है. मेनी ऑफ द डेटा टाइप्स आर कॉमन. C में ऑपरेटर्स है, C++ में ऑपरेटर्स है. मेनी ऑफ द ऑपरेटर्स आर कॉमन. C में फॉर लूप है, C++ में फॉर लूप है. लूपिंग स्टेटमेंट जितने भी C में हम यूज करते हैं वो सभी हम C++ में यूज कर सकते हैं. कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट सभी यूज कर सकते हैं. अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट सभी यूज कर सकते हैं. लेकिन वहां पे अगर मैं printf scanf यूज करता हूं तो यहाँ पे सिंटैक्स खाली अलग होगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. खाली सिंटैक्स उतना तो पढ़ना पड़ेगा. तो हम जावा, जैसे कि मैं बोलता हूं कि
प्रिंट एफ सी में यूज होता है, सी आउट कहाँ यूज होगा, सी प्लस प्लस में। और फॉर एग्जाम्पल इन जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, जावा इज अगर आप उसका आईडी यूज नहीं करते हैं ना, तो जावा इज समवॉट डिफिकल्ट टू राइट द जावा प्रोग्राम इन नोटपैड बिकॉज देर आर सो मेनी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. ऑल these programming languages are case sensitive languages. Case sensitive means there is a difference between capital and small letters. So हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होगा, फीचर्स अलग होंगे. जैसे कि हम बोलते हैं कि C++ में अगर 5 इनहेरिटेंस है तो जावा में 4 इनहेरिटेंस है. एक इनहेरिटेंस को सपोर्ट ही नहीं करता बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट 2 बेस क्लासेस फॉर अ सिंगल डिराइव्ड क्लास. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इंटरफेस दिया है तो नाम खाली अलग दिया है. बाकी इंटरफेस इनहेरिटेंस सी में भी है, सॉरी C++ में भी है, जावा में भी है. So each language may have its own syntax and specific features, but they share the fundamental concepts of OOPS. Fundamental means inheritance का जो definition है वो C++ में वही है जो जावा में है, या जावा में वही है जो C++ में है. Then what are the applications? Application बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि it is possible to develop a small softwares in C++. डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिख सकते हो. वेब एप्लीकेशन अगर आपके पास वो दूसरी आईडीए है तो इट इज़ पॉसिबल टू राइट वेब एप्लीकेशंस. मोबाइल ऐप्स लिख सकते हो. गेम डेवलपमेंट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये किसके हैं? दीज आर नॉट द एप्लीकेशंस ऑफ C++, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ OOPS. फिर उसमें पाइथन भी आ गया, तो इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग पाइथन. इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप web applications using Python, JavaScript and all other things. गेम डेवलपमेंट में भी C++ का यूज होता है. Many games are developed by using these object oriented programming. सिमुलेशन, मॉडलिंग, इसमें भी इसका यूज होता है. OOP is useful for simulating real world systems or modeling abstract concepts. Objects can represent entities, events, relationships within a simulation, allowing for dynamic and interactive behavior. हम आजकल बहुत सारी एक वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बहुत, अब तो जनरेटिव AI भी आ गया. AI क्या था कि अगर हम उसको एक डाटा सेट देते हैं कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दीज आर द 100 टाइप्स ऑफ कैट्स, दीज आर द 100 टाइप्स ऑफ डॉग्स, तो इसमें हम क्या करते थे, ये सब कैरेक्टरिस्टिक को लेके रखता था. उसके बाद अगर मैं किसी बिल्ली का फोटो, कैट का फोटो अगर उसके सामने लेके जाता हूं तो वो बराबर रियलाइज करेगा कि दिस इज अ कैट. लेकिन इसके आगे टेक्नोलॉजी निकल गई, जनरेटिव AI. Nowadays, it is possible to create images as per your imagination. Give me the image of a cat which is celebrating Christmas. So it will generate the image of cat. This is called as generative AI, generative artificial intelligence. Then object oriented database में भी यूज होता है. It is possible to configure, access, process data also. Then जो कि हमारे सबके कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं तो इट इज़ पॉसिबल और इट इज़ नेसेसरी रादर टू चेक व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो अगर आप यहाँ पे सिंटैक्स देखोगे ना तो सिंटैक्स इज ऑलमोस्ट सेम एज our C programming language syntax. There are pre-processor directives. Pre means पहले, जो पहले प्रोसेस होगा उनको हम हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ, ऑल दीज आर कॉल्ड एज pre-processor directives. This is the structure of C++ program without classes. डिक्लेरेशन में क्लासेस आ जाएंगे. उसके बाद आएगा मेन फंक्शन.
अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सी और सी प्लस, क्योंकि सी का भी ऐसा ही था, सी प्लस का भी सिंटैक्स वैसा ही है। बिल्कुल नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज अ डिफरेंट थिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड स्टेटमेंट इसके नीचे आता था। मीन्स वंस यू राइट अ सिंगल स्टेटमेंट इन सी, सी एल आर एस सी आर भी अगर आप लिखते हो तो आफ्टर दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन सी, whereas in C++ you can declare variables anywhere, you can write statements anywhere. सिंपल है, प्री प्रोसेसर सी के जैसा ही है, ओनली आपको अंदर का जो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लिखने हैं। जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट खाली अलग लिखने हैं, क्लास ऑब्जेक्ट अलग लिखने हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। थोड़ा डिटेल में भी दिया है यहाँ पर। Hash include iostream.h, hash include conaio.h. See, if you are using Turbo C++ IDE for writing practical programs of C++, then don't forget to include these two files. iostream उधर जैसे हमारी stdio.h थी, उसी तरह से यहाँ पे iostream.h है। लेकिन if I want to use CLR SCR get ch, then it is necessary to include conaio.h in C++ programming language. Necessary. Because prototype of these functions is stored in conaio.h, whereas in C you can write CLR/SCR directly without using conaio.h also. So while writing, see, I will tell you what is the best procedure to write C or C++ program. Best procedure is create one program, suppose 1.cpp. Write down these things. When I want to write a new program, save that program as some another program and then write down your code, so that that first template is intact. Same can be used for a second program, so that it is not necessary to use these statements in each and every program, that you have to type hash include iostream.h, hash include conaio.h। ये दो स्टेटमेंट, मेन फंक्शन, करली ब्रेस ओपन क्लोज, ये लिख के रखो, उसको कुछ भी नाम दो x.cpp। अगर मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है तो ओपन x.cpp, सेव दैट प्रोग्राम एज सम अनदर नेम fact.cpp। तो x.cpp तो हमारा इंटैक्ट रहेगा। यू कैन राइट प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल। दूसरे दिन अगर मुझे फाइबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखना है तो बेटर टू ओपन x.cpp अगेन, सेव दैट प्रोग्राम एज fibo.cpp एंड राइट योर प्रोग्राम। एंड व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम आल्सो, एक एरर हर बार बहुत बार आता है कि करली ब्रेस इज मिसिंग, बिकॉज C++ की या C की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस आर सेम। सो इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस दैट व्हेन यू यूज ओपनिंग करली ब्रेस, इमीडिएटली ऑन सेकंड लाइन गिव क्लोजिंग करली ब्रेस। ओपनिंग करली ब्रेस दो, उसके बाद इमीडिएटली क्लोजिंग करली ब्रेस दो, और उसके अंदर जो टाइप करना है करो। उसके बाद और ओपनिंग करली ब्रेस देना है तो और एक ओपनिंग, क्लोजिंग, उसके अंदर जो भी लिखना है, सो दैट योर प्रोग्राम बिकम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। आगे आगे लिखते हैं ना हम, हैश इंक्लूड क्या, करली ब्रेस ओपन करती है, उसके नीचे हम टाइप नहीं करते हैं जनरली, दो स्पेस मार के फिर लिखते हैं। उसके अंदर अगर कोई फॉर लूप आता है, उसके बाद अगर मुझे करली ब्रेस ओपन करना है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो फिर मैं दो स्पेस देके उसके आगे लिखूंगा, सो दैट आई विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया दैट फ्रॉम वेयर फॉर लूप स्टार्ट्स एंड एट विच पॉइंट योर फॉर लूप एंड्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें आते हैं प्री प्रोसेसर, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट, जिसको कोई मर्यादा नहीं है वो ग्लोबल, जिसकी मर्यादा है वो लोकल। इफ यू सी ए एंड बी हियर, so there is a binding that you can use these two within this block only. Out of this block it is not possible to use a and b, whereas for C there is no binding. You can use it in main function, you can use it in any other user defined function. So when there is no binding for a variable to access, then that declaration is called as global declaration. So it might be before main.
और जहाँ पे भी आपने वेरिएबल्स को करली ब्रेस के अंदर डिक्लेयर किया तो वो ब्लॉक के उतना ही प्रोसेस करेंगे, ब्लॉक के बाहर प्रोसेस नहीं करेंगे. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स. मेन फंक्शन आई थिंक ऑल ऑफ यू नो. मेन फंक्शन लिखते वक्त भी दो चीज़ें ध्यान में रखो. अगर आपको गेट सी एच के बाद कुछ नहीं लिखना है तो वॉइड मेन लिखो, और अगर आपको गेट सी एच के बाद रिटर्न 0 लिखना है तो वॉइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बेटर टू यूज वॉइड मेन. ये मेरी सलाह है. अदरवाइज यू कैन राइट ओनली मेन, और ओनली मेन अगर लिखते हो और रिटर्न 0 नहीं लिखते हो तो रन करने के बाद एक वार्निंग आएगी, एरर नहीं आएगा, वार्निंग आएगी कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू. अब ये वार्निंग क्यों आएगी? बिकॉज डिफॉल्ट डेटा टाइप इन सी और इन सी प्लस प्लस ऑल्सो इट इज ए इंटीजर. और हमने देखा है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन जनरली कैसे रहता है कि रिटर्न टाइप एंड देन फंक्शन नेम. अगर मैंने वॉइड मेन लिखा है तो डेफिनेटली इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये तो डिसाइड हो गया. लेकिन अगर मैंने वॉइड मेन नहीं लिखा है या वॉइड नहीं लिखा है, ओनली मेन लिखा है, तो उसके पहले अगर कुछ रिटर्न टाइप नहीं है तो सी प्लस प्लस ये डिसाइड करेगा कि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, बिकॉज डिफॉल्ट डेटा टाइप इज इंटीजर. तो आपको खाली मेन लिखना है तो रिटर्न 0 लिखो. अब रिटर्न 0 लिखने में नुकसान क्या है? देखो, RETURN ब्रैकेट ओपन 0 ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन 10 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे. उससे अच्छा है वाइड 4 कैरेक्टर का लिख दो, छोड़ दो. So thank you very much for watching this video. Tomorrow we will see the second day video of C++. So thank you very much. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you.